बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आपसे है
है और से आकार हूँ, आका बड़ी नदामत है, कसम खुदा की ये सारा प्यार आपसे है। मैं बेकरार था, मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है। हजूर मेरी तो सारी and recovery drill by our outstanding HSSC department team. ER drill are the most effective way to prepare your facility and you to deal with any emergency on road without having to learn hard way in case of such emergency. I am confident, inshallah, all of us will leave the venue today more knowledgeable and prepared to respond in case of, God forbid, any road emergency involving rollover where every minute counts. It is hoped that you will take learning forward as a public service message and continue educating other drivers and road users to ensure road safety. Now, I would request Mr. Mukhtar, our HSSC Manager North, the organizer and the conductor of this drill, along with his team, to go ahead. Over to Mukhtar. HSC Manager North, I am responsible for assuring that all safety standards inside the installations and on road are to be complemented and applied. In addition that, my role and responsibility to train the persons and drivers according to the assessed hazards on the ground. For this purpose, we have to be trained drivers and the staff as well. The recruitment process is being adopted with the fit to work policy as well as the required mandatory trainings as the induction, post-induction training, ongoing trainings and the remedial trainings as well. According to this occasion, we have also been practiced within a monthly interval basis locally at a lower level, but at this time we have practically adopted the scenario at a major level for which have to be announced as a mega emergency response drill. The few highlights about this drill are the event-wise that there will be a rollover on the road and the driver will convey the message to our HSC manager or the control commander as well for the incident. We have to be, for the sound alarm is to be launched, and on the emergency sound alarm we have to be assembled behind this curtain where the assembly area is to be designated with all over the present person including the guests. We request to be joined as the assembly point. After the identification of that, we have our security staff is to be mentioned for the attendance, and then the activity is to be started through the ER teams, fire team, cordon off team, medical team and the recovery breakdown team. All are to be activated to fulfill and complete the entire exercise. सिक्योरिटी गार्ड सायरन बजाएं, एक इमरजेंसी हो गई है। गड्डियां आने जाना ऊपर आ विसल पे जा दें।
अपना मेगाफोन की इमरजेंसी रिस्पांस को ऑन कर दे। उधर ले जाओ। बस ठीक हो गया, आ रहे हैं ना बंदे, बस ठीक है। चल तुसी भाई काम करेगा। उधर ले जाओ। फायर टीम इत्थे तक, नो प्लीज। बस इत्थे तक। The fire team are just workshop workers and divers along with one our mechanical engineer who lead the fire team. अच्छा जल्दी आ, जल्दी आजा आजा इतने आजा आजा। कौन तो गड्डी नू लै। मुकास साहब आपकी फायर टेंडर की जरूरत है प्लीज। गड्डी नू लै जानते जान। वो परले पासे ले जा, क्लियर आवे। Not in front of the fire, they are out of the cordon of areas. Two away from
उधर ले जाओ। बस ठीक है, आ रहे हैं ना बंदे, बस ठीक है, आ जाओ। चल तुसी position, the noise of the victim crying, you may have to be listen here while sitting on your seats. So the first dressing by our first aider of BSL local medical team is being done. ठीक एम्बुलेंस भी आ गई। हाँ, ताकि तो रोड साइड जो आएगी ना एम्बुलेंस। I would request to the fire 1122 commander to clear the crash tender from the area. इधर आ। अस्सलाम वालेकुम। क्रेन इमरजेंसी रिस्पांस, हमारी लोकेशन पे क्रेन की ज़रूरत है, हम आइए जल्दी। अच्छा उन्हें इधर क्लीनर ने आया क्रेन।
माथे छोड़ दें आप। Fire team lead, you are requested to maintain at least 20-meter distance from the incident. Drill coordinator maintain a working at height 6. हाँ कर लो दूसरी चार्जिंग ये ला दो। हाँ Actually, the crane, three movements are most observable. One is the hosting, lifting, and the third one is slewing. That should be very smooth, slow, and accurate. Take your positions. अच्छा अच्छा
Zulfikar sahab, lowering should be slow and slide, slow and slide.
ओके, थैंक यू। ड्राइवर को कहें कि मूव करके बाहर ले जाए गाड़ी। आ जाओ भी। दो तीन मेरी थी ऑब्जर्वेशन में ज़्यादा सलाह बैठे थे उनके साथ भी शेयर कर रही थी। तो वही पहले तो आई वुड अप्रिशिएट कि बहुत अच्छा एक्टिविटी का इस तरह की हमें करते रहना चाहिए ताकि एक दूसरे से सीख सकें, हमारे अपनी सेफ्टी पॉइंट शो कर सकें। बट जब एक तो प्लेसमेंट आई थिंक ये तो ड्रिल थी एक, बट जब एक्चुअल में अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता कोई इंसिडेंट होता है तो उसमें ज़रा ज़्यादा क्रिटिकल और अफरा तफरी वाला माहौल होता है। अभी ड्रिल में भी प्लेसमेंट में लेगी थी, कुछ लोग काफ़ी पास खड़े हुए थे जिनको एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना होना चाहिए था। तो वो एक्चुअल में आई थिंक हमें ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। उसके अलावा जब हम ऊपर जब ग्रीन की बेल्ट सिक्योर करने के लिए चढ़े तो स्टूल जो प्लेस किया गया, मुझे एग्जैक्टली कासा बेदर बता सकते हैं कि वहाँ पे किस तरह का इंतज़ाम होता है कि ऊपर चढ़ने के लिए क्या होता है। बट वो एक फॉलिंग हैजर्ड है कि उसकी सिर्फ एक साइड पे था, दूसरी साइड पे कोई चढ़ते हुए गिर सकता है उसको। Thank you very much for the highlighting a point. Actually, working of height will be started above 8 feet of height distance recommended. This was a 2.3 feet distance required for the participant to approach. In actual hazard, they will climb manually because each and everything is not possible at everywhere at the actual scene of incident. So avoiding from the climbing on vehicle by the team, so we have to be provided and pre-arrange the bench sport of 2.3 feet height so that they can climb their rope with the joining portion of the vehicle body. So we feel and regret, but impossible other than case of the provision of jacking or the stairs for particular type of 2 to 3 feet as well. Thank you, ma'am. बस ये एक दो तीन ऑब्जर्वेशंस थी। एक निकलते हुए आई थिंक ड्राइवर ने जल्दी में सीट बेल्ट नहीं पहनी, फिर चलाने के बाद पहनी, वो थी। बस बाकी तो बड़ी अच्छी एक्टिविटी थी, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ इंशाल्लाह दोबारा भी हम करेंगे। हमारे लिए ये वर्ड बड़ा वैल्यूड है, हालांकि एक्चुअल हम इनसे सीख रहे होते हैं, इनकी अवॉइड पे एक्ट कर रहे होते हैं, इनकी रिक्वायर पे परफॉर्म कर रहे होते हैं, बिकॉज वी आर द सर्विस प्रोवाइडर। रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पे आए। जी थैंक यू। इस्लाम तो फैल नेस्ले से मैं ट्रांसपोर्ट देख रहा होता हूँ नेस्ले में। अच्छा, थोड़ा सा फीडबैक यही था, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, लेकिन पास्ट में
more than 15 to 20 at time हमारे साथ कॉन्ट्रैक्टेड ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। BSL के साथ हमारा एक लॉन्ग वर्किंग रिलेशनशिप है और यही तकरीबन ट्रांसपोर्टर्स का पूल होगा जो इवन आप लोगों के सबके साथ भी यही काम कर रहे होंगे। तो अदर देन द ड्रिल जो एक्चुअल ऑपरेशंस में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, फॉर एग्जांपल रोड पे गाड़ी जा रही है, वही ड्राइवर है, वही ट्रांसपोर्टर्स है और इवन यही ड्राइवर्स रोटेट कर रहे होते हैं विद द ट्रांसपोर्टर्स। तो इंसिडेंट होना ऑब्वियसली बहुत बड़े ऑपरेशंस हैं, बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। रोड पे इंसिडेंट्स हो रहे होते हैं, इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट्स। अब उसके अंदर एक जो कॉमन फीलिंग है जो मैंने ऑब्जर्व किया है वर्किंग विद BSL, सबके साथ इंसिडेंट्स हो जाते हैं, लेकिन जो रिस्पॉन्स मैंने वहाँ पे देखा था, मैं उसके पीछे की वर्किंग ऑब्जर्व करने इस ड्रिल के लिए आया था। तो जिसके ऊपर मुझे कॉन्फिडेंस है कि यार वो जो रिजल्ट मुझे वहाँ पे मिल रहा था उसके पीछे ये पूरी टीम काम कर रही है और ये सारे पीछे एक मेहनत है जिसकी वजह से वो रिजल्ट मुझे देखने में मिला। कोई अगर खुदा ना खास्ता छोटा मोटा इंसिडेंट BSL की किसी गाड़ी के साथ हुआ था तो उस पर मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस था और मैं देखना चाहता था कि यार उस इंसिडेंट के अंदर किस तरह इनकी टीम पहुंची टाइमली। ये तो बिल्कुल ड्रिल है, ये तो एक मैन मेड एक पूरी सेटिंग है। मैंने इनके साथ एक्चुअल में ऑब्जर्व किया हुआ है जिसके ऊपर मुझे कॉन्फिडेंस है और वो उसकी वर्किंग यहाँ पे देखने में भी मिल रही है। पूरी टीम्स हैं, पूरे आइडियाज़ हैं लोगों के जिनको उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, 20-25 साल लगा के यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हमारी भी यही कोशिश होती है कि एक बहुत बड़ी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जो अनस्ट्रक्चर्ड है, जिनके ड्राइवर्स, जिनके ऑपरेट करने वाले ट्रक अड्डे सबको हम जानते हैं, उस अनस्ट्रक्चर्ड इंडस्ट्री का बहुत छोटा सा चंक है हम जैसे ट्रांसपोर्टर्स। तो हम उसको चेंज करने में जो एफर्ट्स कर रहे हैं वो कहीं पे स्ट्रीमलाइन हो, मेरी एफर्ट आपको दिखे, आपकी एफर्ट मुझे दिखे, हम दोनों एक दूसरे से सीखे कुछ और अपने ट्रांसपोर्टर्स, अपने क्लाइंट्स को उन्हीं प्रैक्टिसेस पे लेके आए। तो वो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, बहुत अच्छा सीखने को मिला और कोशिश करेंगे हम लोग यहाँ से जो सीखा है इस तरह की एक्टिविटीज़, सिमुलेशंस हम भी जाके इम्प्लीमेंट करें और मे बी उसमें BSL या कोई और हमारी हेल्प कर सकता है तो उसको हम अपने पास भी ऑर्गेनाइज करें, अपने पास अवेयरनेस क्रिएट करें। तो थैंक यू सो मच कमर साहब और मुख्तार साहब, बहुत अच्छा इनिशिएटिव था और इंशाल्लाह इसको कोऑर्डिनेट करें। थैंक यू। असलान साहब के कमेंट्स पे मैं एक ही बात कहूँगा कि हम सब लोग मिल के दुआ करें अल्लाह ताला हमें इससे बेहतर एक्टिव रहने की, अच्छी तरह परफॉर्म करने की तौफीक दे और साथ हमसे लोगों को और लोगों से हमें। थैंक यू असलान साहब। मैं रिक्वेस्ट करूँगा सर करीम साहब या शकील साहब आए। पाकिस्तान से हूँ, एज ए वेयर हाउस मैनेजर काम कर रहा हूँ। माशाल्लाह ड्रिल तो आपने मुख्तार साहब बहुत अच्छी अरेंज की हुई है, सारी चीज़ें ही परफेक्ट थी। सिर्फ एक चीज़ मुझे इसमें लग रही थी, क्योंकि हम लोगों का काम है केमिकल से रिलेटेड, पेस्टिसाइड्स की इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा कुछ स्पिलेज के हवाले से अगर आपको इसमें और पोर्शन रख देते या ड्राइवर्स को गाइड यकीन आप तो करते हैं, हम लोग भी कर रहे होते हैं, तो वो ज़रा यहाँ पर सबके सामने होता है, कोई एरिया कॉर्डन ऑफ करना होता है उसमें आप लोगों ने। और समटाइम ऐसे होता है कि लोग हमारे जो अगर गाड़ी उलट जाती है रोड के ऊपर तो लोग आते हैं चीज़ें पकड़ने के लिए, अगर आप उसको भी थोड़ा सा बता देते तो बहुत अच्छा होता। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर कमर साहब को माइक देता हूँ। इट वाज एडिट बट ड्यू द फेड अप एंड द लेंथ ऑफ टाइम द स्पेल exercise we did out from our 4 events which we have to be practical done. स्पेल की काई साहब की रिक्वेस्ट थी, मैं उसी लैंग्वेज में स्पेल की एक्सरसाइज भी हम करते हैं और ये हमारा पार्ट है। और रोल ओवर के अंदर स्पेल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, जिस तरह मैंने बताया कि जब हम गाड़ी को चेक कर रहे हैं, हमने इंजन को चेक किया, ब्रेक को चेक किया, स्टीयरिंग को चेक किया, तो इनमें जितने लिक्विड है वो हाइड्रोलिक है, फ्यूल है। ऑपरेशन में द केमिकल कंपनीज का जानते हैं मुझे कि ये when we have started, I was just telling him कि we had gone through many training program of Syngenta to keep things very safe. The only thing I think the missing was we do not have that spill kit available. This should have been there.
I fully endorse your point. But as it was not specifically done for chemical people, it was, so we based it. I think inshallah in our next program we'll make sure that chemicals are being looked after, because it's a very separate study. और मैं आपसे एक request करूँगा, if your people can come, we have a training center here, two in Karachi, one is here. And Mukhtar is in charge of that, and he keeps on driving people through that. If you can send some specialists like Munir and other people, they who used to come. Munir है Karachi में? अच्छा. So he was the one who used to train us. So if you can send somebody who can train on chemicals also, we do not have that facility available, or people are not having those kind of expertise to train on chemicals. So it's very kindly requested that if you can send somebody once in a month or once in 2 months after having your program set by with Mukhtar, ताकि हम इस expertise को भी अपने अंदर अपना लें, because we do not have that kind of expertise available. It is already in Karachi but not here. क्योंकि मैं खुद आपकी ट्रेनिंग में रहा हूँ, आपको एक नहीं कई मरतबा आप used to be there. He used to make sure that we are fully trained before we go for signing any agreement. Thank you very much. I totally endorse your point, and that part was missing. Still, it should have been there at least. Right. Thank you. मेरा नाम, मैं KNN डिस्ट्रीब्यूशन का हेड करता हूँ। तो हम भी BSL सर्विसेज दे रहे हैं। इसी तरह छोटा मोटा इंसिडेंट 1-2 दफ़ा हो गए, तो उसमें इनका अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। तो इसको ही देखने के लिए हम आए थे। तो इसके पीछे मुख्तार साहब को सारा क्रेडिट जाता है कि इन्होंने अपनी टीम ट्रेन की हुई है, ड्राइवरों की ट्रेनिंग वगैरह करते रहते हैं। तो बहुत अच्छा लगा इधर आके, बड़ी अच्छी रही ट्रेन। तो इंशाल्लाह मुख्तार साहब से मिलकर हम अपने एंड पे भी करेंगे ये चीज़, और आपको भी सब रिक्वेस्ट करते हैं कि इस तरह के अपने एंड पे भी आप ऑर्गेनाइज करें। थैंक यू। पाकिस्तान ऑक्सीजन गैसेज से कुछ पॉइंट तो मिस ने भी ऑलरेडी हाईलाइट कर चुके थे, जो मेन थे इशू, और सर ने भी ये केमिकल्स वगैरह के बारे में। लेकिन हमारी जो इंडस्ट्री है वो बेसिकली ऑक्सीजन, जो कि बहुत ही क्या कहें कि तो फ़ायदेमंद है और ऊपर से नुकसानदेह भी है। इन केस कहीं भी इंसिडेंट होता है तो ये गैस बहुत ज़्यादा ठंडी होती है कि कोई बंदा इसको हाथ नहीं लगा सकता। इन केस कहीं ऐसी जगह पे कोई इंसिडेंट हो जाता है तो उसको कैसे कवर करना है, कैसे उसको लोगों को वहाँ से हटाना है, इसके बारे में भी हम एक चार इस तरह से कि ड्रिल करवाई जाए ताकि उसके बारे में भी सबको आगाह किया जा सके। क्योंकि ये गैस आम गैसेस से हटके है, क्योंकि आम ये गैस -190 डिग्री पे तैयार की जाती है, जो कि हम इसको हाथ नहीं लगा सकते, सिर्फ देख सकते हैं या सूंघ सकते हैं, उसके अलावा इसको कुछ नहीं कर सकते। इवन कि ये फूड में भी यूज़ होती है नाइट्रोजन, जो कि आम रूटीन में हमें शायद पता नहीं होगा कि फूड में हम लेस यूज़ करते हैं या ये पानी की बोतल्स है, इसमें भी नाइट्रोजन का एक ड्रॉप होता है ज़रूर। लेकिन हम कहीं भी कोई इंसिडेंट हो जाता है तो उसमें इसको कैसे कवर करना है, तो उस चीज़ के लिए मैं सर की हेल्प लेना चाहूँगा। आपकी ट्रेन यहाँ से वापस हो रही थी, तो उसमें बंदा चलती हुई ट्रेन में भाग के चढ़ा, तो ये हमारा जनरल बिहेवियर है। मतलब बस स्टॉप पे रुकी, आगे बच्चा बड़ी भाग रहे हैं, तो ये क्या सही नहीं है। और दूसरी बात ये कि जब वहाँ से ट्रेन टिल्ट हुए हुए कंटेनर को सीधी कर रही थी, तो बंदा अनसस्पेंडेड रोड के नीचे खड़ा हुआ था, यानी उस कंटेनर के नीचे खड़ा हुआ था, ट्रेन के नीचे खड़ा हुआ था। तो कभी भी आप किसी लोड के नीचे भी खड़े हों, ख़ासतौर पे वेयर हाउस में जो वेयर हाउसिंग से रिलेटेड लोग हैं वो देख रहे होंगे कि जब लिफ्टर कहीं से चीज़ पिक करता है तो अक्सर वर्कर्स नीचे घूम रहे होते हैं।
ये ऑब्जर्वेशन की आपसे शेयर करूँगा। और दूसरी जो चीज़ HSC से रिलेटेड मैं शेयर करना चाहता हूँ, तो इस सारे सिनेरियो का जो नक्शा है वो ये है कि आप HSC को जब तक पर्सनल लेवल पे कहीं इंडोर्स अपने घरों में नहीं करेंगे, बिहेवियर में नहीं लाएंगे, तो चेंज नहीं आ सकती। हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं इनमें से कितने लोग ऐसे होंगे जिनके घरों में फायर एक्सटिंग्विशर नहीं होगा, क्योंकि हमारा बिहेवियर ही नहीं है। जब हमारा नहीं होगा तो हमारे बच्चों का भी नहीं होगा। तो आप ऑब्जर्व करें, देखें, सारी एक्टिविटी बहुत अच्छी है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके आए, वो बहुत ज़रूरी है। छोटी एज के बच्चे हैं, उनके अप्रोचेबल पोर्शन में रखा हुआ था, तो उनके एक बच्चे की आंखें ज़ाया हुई थी। इंसिडेंटली उसने उसको ऑपरेट किया और अपने फेस के सामने उसकी नोजर थी। तो सिलेंडर के रखने की बात तो अपनी जगह पे, लेकिन उस सिलेंडर की यूटिलाइजेशन जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से अब आपके कमेंट्स अच्छे आ रहे हैं। तो ये हमारी उस टीम की वर्किंग स्किल है। उस स्किल की भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप सिलेंडर रख लेते हैं लेकिन उनको हम एजुकेट भी करें। और जो सर ने बात बताई कि सेफ्टी हर बंदे के लिए है, अच्छा हम लोग उसको वाकई नहीं समझते। अल्लाह ताला ने इंसान को बाकी जानवरों की निस्बत ज़्यादा डिफेंसिव जो है वो तकलीफ की है। हमारे जो 5 सेंसेस हैं, ये प्रोएक्टिव अप्रोच ऑफ HSC जिसको हम लेके जिस प्रोटोकॉल पे चलते हैं उसके ऊपर तो हम तख्लीक हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उसको समझते नहीं। और जो मैं शुरू में एक शेर कहा था ना कि अपने हाथों से अपने हीरे दफना रहे हैं और मलाल भी नहीं करते। हमारा ये ट्रेंड है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में 2-4 बंदे सेफ्टी के होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबको सेव करना, जबकि अल्लाह ने सबको सेफ रहने के लिए शऊर, आवाज़, अकल, दिमाग दिया हुआ है। और हम सेफ कब होते हैं? जब कोई मुंह पे थप्पड़ मारने लगता है तो हाथ आगे कर लेते हैं। हम इस शऊर को यूटिलाइज करते हैं और यही वो काज है जिसकी वजह से इंसिडेंट होता है। प्रोएक्टिव सेफ्टी के ऊपर नहीं होते। मैं तमाम हाज़रीन से रिक्वेस्ट भी करूंगा और एडवाइस भी करूंगा कि हम जहां जहां पे जिस जगह पर भी हैं अपना इस चीज़ के अंदर रोल अदा करते रहें। हमारी एक एक टिप, एक एक बात किसी को बचाने के काबिल बना देती है। तो हमारे लिए अल्लाह ताला का वो वादा कि जिसने एक इंसान को बताया है उसने पूरी इंसानियत को बचाया है, उसका हक अदा हो जाएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे भी याद नहीं, यूनिलीवर के अलावा कोई बंदा कमेंट्स के लिए रहता है? एनी अदर क्लाइंट फ्रॉम यूनिलीवर के अलावा? डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर मैनेजर हूँ फॉर वॉल्स आइसक्रीम नॉर्थ एंड सेंटर। फर्स्टली मुख्तार साहब और टीम को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा फॉर सक्सेसफुल ड्रिल। इनके साथ अभी रिसेंटली काम करना शुरू किया मैंने। वॉल्स हैज़ बिन पार्टनर विद BSL फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम और अल्हम्दुलिल्लाह वी हैड वेरी लिटिल इंस्टेंट्स जहाँ पे हमें इसकी जो इनकी प्रोग्रेस है उसकी इफ़ेक्ट्स नज़र ना आए। द टीम इज़ वेरी वेल प्रिपेयर्ड और भी रिसेंटली भी हमारे साथ मंथ बैक भी इंसिडेंट हुआ जिसमें ड्राइवर्स की प्रॉपर गाइडेंस और ट्रेनिंग की वजह से वर एबल टू अवॉइड एनी मेजर डैमेज और लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज। वो इस ड्रिल से उस चीज़ का पता चलता है कि दे आर प्रिपेयरिंग देयर ड्राइवर्स फॉर सच इंसिडेंट्स एंड वी होप कि इन द फ्यूचर एज वेल द टीम कीप्स ऑन वर्किंग एंड विद सच विगर और आगे भी इस तरह ही अपनी टीम को ट्रेन करेंगे ताकि फ्यूचर में अगर कोई खुदा न खास्ता इंसिडेंट होता है तो टीम इज़ प्रिपेयर टू हैंडल इट वेल। थैंक यू। बेसिकली रात में आए तो मैंने कहा मैम 1122 से चेंज करना, तो मैं यहाँ पे तहसील पत्तों की मैं एज ए रेस्क्यू 1122 की तहसील इंचार्ज और रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर के प्राइज से इंजाम दे रही हूँ। ओवरऑल हमने आज ड्रिल देखी, काफ़ी अच्छी ड्रिल थी। हर जगह पे कुछ ना कुछ गुंजाइश रह जाती है, इवन कि हम इस फील्ड में डेली बेसिस पर हम डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। तो हमारी कोलैबोरेशन इनके साथ वक्तन को वक्तन होती रहती है और हर दफ़ा जो हमारी इनपुट होती है हम इनको देते भी है। बाकी मज़ीद ऑब्जर्वेशन मैं ऐसी नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, जितनी छोटी छोटी थी आप सब लोगों ने माशाल्लाह को बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व किया, उसको रेक्टिफाई भी किया है।
और जहाँ तक बात रहेगी रेस्क्यू 1122 की, तो जो आपने अवेयरनेस की बात की सबने कि होनी चाहिए, घरों में फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ होना चाहिए। और हम अल्हम्दुलिल्लाह रेस्क्यू 1122 क्लेम करते हैं कि हम सेफर कम्युनिटीज़ के लिए भी वर्क कर रहे हैं। हमारा डेली बेसिस पे काम है कि हमने स्कूल कॉलेज लेवल में इंडस्ट्रीज़ में जाके फर्स्ट एड, फायर सेफ्टी और इवन कि इससे भी आगे जाके हमारा एक प्रोग्राम है जो कि इंटरनेशनली है। हम उसमें लेमैन को विद मिनिमम इक्विपमेंट्स के साथ ट्रेन करते हैं कि वो किस तरीके से किसी भी डिज़ास्टर को, इंसिडेंट को डिज़ास्टर में कन्वर्ट होने से बचा सके या किसी भी इंसिडेंट में मिनिमम जो है उसको, उसके इम्पैक्ट को कर सके। तो हमारा प्रोग्राम का नाम है कम्युनिटी एक्शन फॉर डिज़ास्टर रिस्पॉन्स। हम इसमें 4 तरह के मॉड्यूल्स हैं, जो कि हम ये नहीं कहते कि इंडस्ट्रीज है डिफरेंट टाइप की, हर एक की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, लेकिन हम जनरली बच्चों को ट्रेन करते हैं, इंडस्ट्रीज को ट्रेन कर रहे हैं। तो हम उसमें सिखाते हैं फर्स्ट एड, उसमें फायर सेफ्टी है, उसमें ड्राउनिंग केसेस हैं और बिल्डिंग कोलैप्स है कि इस सिचुएशन में आप एज अ लेमैन, जिसको मिनिमम हम इस हद तक ट्रेन करें कि अगर आपके पास कोई स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट नहीं है तो फिर जब तक कोई स्पेशलाइज्ड टीम नहीं आती, चाहे रेस्क्यू 1122 हो या कुछ और उस इदारे की अपनी टीम है, आप उस किस तरह से उस नुकसान को मिटिगेट कर सके। तो BSL के साथ हमारा कोलैबोरेशन रहा है, तो हमें बड़ा अच्छा लगा है। कुछ पॉइंट्स थे तो जो सब ने बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट किया है। तो जो कमी पेशी रह गई, हम इंसान है, ट्रायल एंड एरर से सीखते हैं, तो इंशाल्लाह मजीद भी इसको आगे रखेंगे ताउन को। तो दोनों तरफ से हम लोग सीखते भी हैं और करते भी हैं। ज़्यादा 1122 के हमारे वो ऑनरेबल शख्सियत हैं। ये जो आप प्रैक्टिकल स्किल देख रहे हैं लोगों के अंदर, इनके अंदर इनकी पर्सनल ट्रेनिंग का भी पार्ट है। वक्तन फौक्तन हम कराते रहते हैं, लेकिन मेजर ट्रेनिंग इन्हीं से हम ले रहे होते हैं। थैंक यू। हमेशा से ये काविश रही है और ये इनकी डेडिकेशन है और कमिटमेंट है जो ये शो करती है कि ये सेफ्टी के हवाले से किस कदर कॉन्शियस है। आज की एक्टिविटी ये देखी है हमने, और इससे पहले भी रेस्क्यू 1122 के साथ कोलैबोरेशन के साथ हम पहले भी मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स का इनेकाद कर चुके हैं। और जिस तरीके मैम राबे ने आपको बताया कि हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है, और आपकी बात को भी मैं इंडोर्स करूंगा कि घर के लेवल पे तो हमारा एक प्रोग्राम है जिसका नाम है फर्स्ट एडर एट एवरी होम, कि हम हर घर के अंदर एक फर्स्ट एडर एटलीस्ट पैदा करना चाहते हैं। फिर ये सेफ्टी सेफर कम्युनिटी का जो है वो हो सकता है ख्वाब शर्मिंदा तबीर हो सकता है। तो उसके लिए हमने ये प्रोग्राम शुरू किया हुआ है और हम इंटेंसिव लेवल पे हम जो है इसकी ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं। हमारा पूरा एक स्केड्यूल होता है, पूरी एक डेडिकेटेड इसके लिए टीम है जो कि मुख्तलिफ इंडस्ट्री में, स्कूल में, कॉलेज में, और इवन के हमने हर जो गांव के अंदर है यूनियन कौंसिल लेवल पे अपनी एक टीम तश्कील दी हुई है जो कि किसी भी डिजास्टर के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको रेस्क्यू के हवाले से बताता चलूं कि उस टीम को हमने इस लेवल तक ट्रेन किया हुआ है कि हम उसका नेशनली और इंटरनेशनली कंपटीशंस करवाते हैं उन टीम्स का, ऑल ओवर द पाकिस्तान, ऑल ओवर द पंजाब। उनको बुला के उनकी फिर ट्रेनिंग होती है और फिर उनका आपस के अंदर एक कंपटीशन होता है, उनकी एक्सपर्टीज को चेक किया जाता है। 6 ईयर्स से ये कंपटीशन हो रहा है नेशनल और इंटरनेशनल, जिसमें दूसरे मुल्कों की टीम्स भी आती हैं और पार्टिसिपेट करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये बताते हुए फ़ख्र हो रहा है कि हमारी पतोकी की टीम और हमारी कसूर की टीम 6 दफ़ा में से 4 दफ़ा पोजीशन होल्डर रही है। तो आप लोग तमाम स्टेक होल्डर्स यहाँ पे मौजूद हैं, मुख्तलिफ इंडस्ट्री से हैं, तो हम आपको दावत देंगे कि अगर आप फूलनगर और पतोकी के गिरदोनवा के अंदर मौजूद हैं तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। आपकी इंडस्ट्री के लिए हमारा तामन हमेशा रहेगा और हमारे दरवाजे खुले हैं। और अगर आप लाहौर या उस एरिया में मौजूद हैं तो आपके जो भी करीबी स्टेशन है रेस्क्यू 1122 का, आप उनके साथ रब्ता कर सकते हैं और इसी लेवल की और इन्हीं स्टैंडर्ड्स पे ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी। एट द एंड मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब मुख्तार साहब का, जिन्होंने इतनी अच्छी जो एक्सरसाइज है उसका इनेकाद किया। और मैं अगेन फिर यही कहता हूँ कि ये इनका बताता है कि ये सेफ्टी के हवाले से कितने कॉन्शियस हैं।
तो अगर तमाम लोग इसी तरीके से अपना पार्टिसिपेट इसके अंदर करेंगे तो हम एक सेफर कम्युनिटी का जो है वो पूरा उसको कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। जिस तरह आप देख रहे हैं 1122 की रेस्क्यू टीम की जो सर्विसेज हैं उनकी रिकग्नाइजेशन के लिए आप तमाम गेस्ट आपकी तरफ से जॉइंटली, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, दिल तो ये चाह रहा था कि मैडम को इनाम मैडम ही दे तो ज़्यादा बेहतर लगेगा, अगर आप रिकमेंड करते हैं तो। ओके, तो मैडम दादा आइएगा ज़रा प्लीज़, और आप अपने हाथों से ही इनको BSL की तरफ से प्रोवाइड कीजिएगा। मैम राबिया खलील साहिबा, आपके लिए है ये शेर। सामने आप सेंटर हो जाएंगे। अरे भाई आपका ये आपका वो है, ये आपने इनको दिया, आपका वो This is purely recognition of their commitment. अच्छा, मैंने एक प्रपोजल और लेनी है। इनका छोटा सा तारुफ है कि स्कूल छोड़ने के बाद से अब तक ये BSL में ही है, साल कितने हुए हैं ये खुद बताएंगे, लेकिन उम्र नहीं बताना। हेलो तमाम साहबान को अस्सलाम वालेकुम। जो ये तारुफ करा रहे हैं वो अपनी जगह पे है। पहली बात तो ये है कि जो PhD का लफ्ज़ है ना वो वाकई सही कह रहे हैं, लेकिन ये स्कूल का लफ्ज़ ख़त्म कर दें, क्योंकि मैं इस बार 4 हाई कोर्ट का मेंबर भी हूँ, तो ये स्कूल से ज़्यादा मुझे जहाँ BSL में 47 साल हो गए हो, और जहाँ तक सीखने का ताल्लुक है, मुझे कोई कहता है कि तुमने किससे सीखा, मैं कहता हूँ ड्राइवर से सीखा। ड्राइवर कुछ करता गया, हम उसका सोचते गए, वो उल्टा सोचता है, हम सीधा करते गए। तो आज जो दूसरा जो चीज सोचते हैं वो अगर सेफ्टी के लिहाज से कहेंगे वो शेल से सीखा है। सबसे पहले शेल से काम हमने किया है, उसके बाद बाकी डिपार्टमेंट से ज्यादा हमने काम किया है। तो ये सेफ्टी जो है ना, पहले इसकी समझ नहीं थी कि सेफ्टी है। अगर देखा जाए ये इंसानियत की सेव करने के लिए जिंदगी, अगर आपने एक जिंदगी बचा ली तो आपने जिहाद कर लिया। तो इस सिलसिले में हमारी जो कंपनी है, आप मल्टीनेशनल को देखते देखते सारी चीजें करती जा रही है कि पूरा डिपार्टमेंट भी कमर्शियल अलग हो, वर्कशॉप अलग हो, दूसरी चीजें, यानी कि 11 इस वक्त डिपार्टमेंट बन चुके हैं BSL के। उसमें HSE एक डिपार्टमेंट है और वो मेन है, तो इसके लिए हमने पूरा अलग सिस्टम बना दिया। जिनके जो लीड कर रहे हैं वो कमर आजम साहब हैं और उसके बाद जो है मुख्तार साहब हैं। तो इंशाल्लाह उसके लिए हमने क्या किया, ये दीवार में आप देखें, ये पूरे हमने 32 सब्जेक्ट है, 36 है, तो वो सारे लिखे हुए मिलेंगे। दूसरा, हमने एक बुक छापी है जिसमें सारी सेफ्टी पूरी लिखी हुई है। वो ड्राइवर कहते हैं हम पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो वो जो है तो हमने कहा कि इसको पढ़, इसको समझ, फिर सीखने के बाद अब ये मार्च से हम उस पर जुर्माना शुरू कर दिया कि जो सेफ्टी को सही अडॉप्ट नहीं करेगा उस पर पेनल्टी लगा, क्या वो वर्कशॉप है चाहे वो ड्राइवर है। तो इसलिए जितने साहबान आए हैं ये हमारा मुआवजा जो करते हैं वो करते हैं थर्ड पार्टी के साथ जो आम ट्रांसपोर्टर है। इनको भी सोचना चाहिए कि BSL इतना एफर्ट कर रही है तो इसको अप्रिशिएट कैसे किया जाए। ये भी सबके लिए रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी है वो इस चीज को देखें। तो इंशाल्लाह बाकी बैठों के टाइम काफी ज्यादा हो गया, खाना लग चुका है, तो मुझे कहा गया कि हम करके खत्म कर दें। अस्सलाम वालेकुम। PhD और हाई कोर्ट तक की हिस्ट्री उन्होंने अपने सेकंड सेंटेंस में बयान कर दी थी कि मुझे सीखने का इतना शौक है। तो ये वो पीरियड था जो इन्होंने डेडिकेशन के साथ ना सिर्फ BSL को दिया, अपनी शख्सियत को प्रमोट करने के लिए भी उन्होंने वो टाइम निकाला है। और 47 साल के बाद आप पहला पीरियड खुद उसमें ऐड कर लें, एज समझ आ जाएगी कितनी है।
और इनका वल्ला जज्बा और सेहत अल्लाह ताला इनको और ज़्यादा दे। अभी भी ये सुबह 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक नॉर्मल ड्यूटी टाइमिंग है, तो अल्लाह ताला इन्हें और तौफीक दे। अच्छा, सेफ्टी मैनुअल की यहाँ पर बात हुई, तो वो हमारे लिए डिटेल सेफ्टी मैनुअल नहीं है। रोड सेफ्टी हवाले से हमने एक ड्राइवर हैंडबुक के तौर पे जो हमारा ट्रांसपोर्ट ऑपरेटिंग प्रोसेस है मैंने अरेंज किया है कि हमारे तमाम मेहमानों के साथ वो एक पीस यहाँ पे आपको हम गिफ्ट करेंगे। लेकिन सब लोगों के कमेंट्स देख के, सुन के और एप्रिसिएशन देख के मेरे जहन में बात आई कि मैं क्यों ना आप ही लोगों से अपनी टीम के मेंबर्स को कुछ गिफ्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करवा दूं। तो जब तक बुक्स नहीं आती हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर काला साइड पे हम साइरन बजा के जो काई साहब ने कहा है वो खाने वाला इंतजाम करेंगे। ठीक है, थैंक यू जी। पहले कुछ कह लें, ट्रेनिंग की वजह से हमारी एक्टिविटी है वो हमने आज यहाँ पे की है आपके साथ, और हमने अपनी तरफ से 100% इसको करने की कोशिश की है ताकि आइंदा भी हम जो इस तरह का कोई भी इंसिडेंट होता है तो हम इसको भरपूर तरीके से उसके कर सकते उसको निभा सकें। थैंक यू। ला दे, चलो अरसलान और चाहिए कि नेक्स्ट मैं अरसलान साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आए। सर इधर देखिए जरा, सर इधर देखिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। एक मिनट देखिए। थैंक यू। और वो इतने प्रोएक्टिव हैं कि मैं उनमें से 2 का नाम मैंने 50% फरिश्ता रखा हुआ है कि कुछ होने वाला होता है आप प्री इन्फॉर्म कर देते हैं, जो कि मेरी सबसे बड़ी सक्सेस है। तो मैं ये वहीं पे दूंगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा शेर खान से कि वो फाइनल होटल में जाए और हम लोग असेंबल हों। बुक्स में जो है वो डाइनिंग टेबल पे सबको दूंगा। तो मैंने पहले कह दिया है वही आप सबके लिए, और खसूस सुमा बिल खसूस हमारी इस टीम के लिए जिन्होंने अपनी ऑफिशियल एक्टिविटी से टाइम निकाला और हम जैसे सर्विस प्रोवाइडर की इस इवेंट में अपनी पार्टिसिपेशन और अपनी शमूलियत के लिए ट्रैवल करके सफ़र करके आए, इस एक्टिविटी को ऑब्जर्व किया और हमारे लिए इन्होंने वैल्यूड जो कलमात हैं वो कहे। मैंने रिक्वेस्ट की हुई है, सर कमर साहब ने एंडोर्स भी किए होंगे, लेकिन मैंने मेमोराइज भी कर लिए हैं। इंशाअल्लाह हम अपनी उन कमियों कमज़ोरियों को बेहतर करके नेक्स्ट टाइम पे जब आपके सामने परफॉर्म करेंगे तो हो जाएगा। सुबह की तरह तमाम लोगों के लिए एक दफ़ा फिर जो खड़े रहने से, बैठने से, सुनने से ज़हनी जिस्मानी थकावट और कमज़ोरी आई है, कल में उसको हम दोबारा से ताज़ा दम ना कर लें। ईआर टीम की तरफ से रिप्लाई नहीं आया, होना चाहिए। तो जो भी परफॉर्मर होता है शाबाश के बाद उसकी वैसे ही थकावट उतर जाती है, वो तो बड़ा एक्टिव हो जाता है। लेकिन मुझे मैसेज आ रहे थे कि हम लोग खड़े खड़े थक रहे हैं, हमारा कुछ करें। तो इनकी थकावट उतारने के लिए हमारा वही जोश जज्बा जिसके लिए हम करेंगे नाराए तकबीर। थैंक यू वेरी मच। सारे गेस्ट हजरात और पार्टिसिपेंट्स, इनसे मेरी रिक्वेस्ट है